Yes, so in last lecture, two lectures, we saw the basics of IPC, that how crime, what is the difference between criminal law and civil law, what is substantive law and procedural law. We saw these things, that how the crime is constituted, what are the elements of crime, actus reus and mens rea, and relevant case laws on that topic. We saw that how it is constituted, when the mens rea is not required, when a person can be punished even without having the requirement of mens rea. We saw what is the difference between intention and motive, and then in last lecture we saw that how what are the stages of crime. There are four stages of crime: intention, preparation, attempt, and commission or accomplishment, and which stage is punishable, how to distinguish between two stages. All those topics we saw in last lecture. Now what we will do, that in Indian Penal Code there are certain general exceptions are given. In section 6 of Indian Penal Code, as you can see it, that definition in the code is to be understood subject to these exceptions. So throughout the code, every definition of an offense, penal provision or illustration of every such definition shall be understood subject to the exception which is contained in the chapter entitled General Exceptions. So जनरल एक्सेप्शंस जो हैं, सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शन हर डिफिनीशन देखा जाएगा. इट्स अ वेरी सिंपल मीनिंग. एक चैप्टर है आईपीसी के अंदर विच इज इंटाइटल्ड, जिसका नेम है जनरल एक्सेप्शंस. वो 76 सेक्शन 76 से चालू होके 106 तक जाता है. जो ये डिफेंसेज हैं, ये इस बेसिस पे इनको बनाया गया है कि वो पर्सन वो काम किया, जो गलत काम है, जो आईपीसी के अंदर लिखा हुआ है, जो ऑफेंस है, उसने वो किया है, बट स्टिल वो क्रिमिनली लायबल नहीं होगा, क्योंकि जब वो क्राइम कर रहा था तो या तो वो जस्टिफाइड था वो काम करने के लिए, या उसका कोई इंटेंशन ही नहीं था वो क्राइम करने का. So it simply means section 6 of Indian Penal Code provides that every offense, every penal provision, every definition, every illustration shall be subject to the general exceptions which are given. And these defenses are based on the fact that although the person committed an offense, he cannot be held criminally liable. Either he was justified in doing that act, or he had no intention to do that act. So a person won't be punished even if he did something which would have been the offense, if these definitions would not have been available, if these exceptions would not have been available, if some other person would have done it, or if the same person would have done that offense and these exceptions were not available to him, then he would have been held liable, he would have been convicted. But if he will take the general exceptions, then he won't be held liable criminally. So from section 76 to section 106, 76 से 106 तक जनरल एक्सेप्शंस आईपीसी में दिया हुआ है. इफ इट इज एस्टैब्लिश्ड, then a person won't be convicted, then a person won't be held liable criminally. So we have to see all this basic of all the defenses, all the exceptions which are available. We'll see it one by one, that how it works. So this is the basic thing. First we understand that what section 6 of IPC provides, and what is the basic thing, what is the meaning of this concept of general exception. Now we will do all this general exception, but I would like to start with the section 82 of IPC, which talks about minority as the defense. So minority is the defense. I will first deal with this. We'll deal with all the general exceptions which are there. So first let us start with the minority as the general exception which is given. Now what is minority? Simple सा मतलब है, सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई इंसान अप टू 7 years of age, अप टू 7 years of age, 7 साल के एज से पहले 7 साल के एज तक अगर कोई भी बच्चा कोई भी काम करेगा, तो यू कैन नॉट कॉल इट ऑफेंस. चाहे वो कुछ भी करे, वो कुछ भी करे, इट वोंट बी कंसिडर्ड एज ऑफेंस. इसके पीछे रीजन है कि एक लीगल मैक्सिम है, डॉली इन कैपेक्स. इसका सिंपल मतलब होता है, अ चाइल्ड इज कंसिडर्ड कि ही कैन नॉट कमिट ऑफेंस, ही कैन नॉट हैव द रिक्विजिट इंटेंशन विच इज रिक्वायर्ड टू कमिट एनी ऑफेंस. अ चाइल्ड कैन नॉट हैव मेंस रिया टू कमिट एनी ऑफेंस. तो 7 साल तक के एज का बच्चा कुछ भी करे, वो ऑफेंस नहीं होगा. वो कुछ भी करे, उसको आप लायबल क्रिमिनली नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड बाय लॉ दैट ही कैन नॉट हैव द रिक्विजिट मेंस रिया, ही कैन नॉट हैव द रिक्वायर्ड इंटेंशन फॉर कमिटिंग एनी क्राइम, ही डज नॉट हैव दैट एम्पल अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग
to understand the nature of the act, to understand that what he is doing, so he won't be held liable criminally whatever he does. तो अब यहाँ पे इसको जनरल एक्सेप्शन कैसे डिफरेंट है? जैसे सपोज कोई इंसान 25 साल का है, उसके ऊपर मर्डर का एलिगेशन है, वो अक्यूज्ड है कि ही कमिटेड मर्डर, केस चल रहा है, प्रोसिक्यूशन इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश दैट ही कमिटेड मर्डर, तो व्हाट ही विल डू? he can say many things, like he can say कि जब क्राइम हुआ था तो I was not available in that city, मैं कहीं और था, he can say this, or he can say that I had no motive to commit any crime, there should why I will kill someone, I had nothing, I had no enmity with that person, there is no reason that I would have killed him. He can say that at that particular juncture, though even I was in that city, but I was not at that particular place where crime happened, and there was no possibility that I can do that. He can take that defense. He can say lot of things. Lot of things can be said by him in the court, that I have not done this crime, where he will try to establish certain things. He will give the evidences. Witness will come from his side, and all these things will go in the court. But suppose अगर किसी 5 साल के बच्चे के ऊपर आप बोलते हैं मर्डर किया है, तो उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि आई वॉज नॉट देयर एट दैट प्लेस, और आई वॉज नॉट एट दैट इन दैट सिटी, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था. ही सिंपली ही विल नॉट बी लायबल, बिकॉज लॉ अज्यूम्स that person, that child cannot have the requisite required intention which is required for committing any crime, so he won't be responsible. तो अंतर है दोनों चीजों में. वहां पे आप ट्राई कर रहे हैं बाय फैक्ट, बाय एविडेंस, बाय विटनेस टू प्रूव कि आई हैव नॉट डन. यहाँ पे अगर आप फॉल करते हैं, 7 साल से कम के हैं, तो ये जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है, और आप लायबल नहीं होंगे किसी भी क्राइम के लिए अंडर आईपीसी. यू कैन नॉट बी हेल्ड लायबल. तो ये होता है, ये दिया हुआ है आईपीसी के अंदर 82 में. We will come back again to 76 also, 76 to 81. We will exhaust all the list of general exceptions, but we are doing it topic by topic, so it's first minority, then we will move ahead with that. So this is the first thing. 0 to 7 age bracket है, इसमें a person won't be liable. दूसरा फिर सेक्शन 83 बोलता है कि अगर सपोज करो उस चाइल्ड का एज 7 साल से 12 साल के बीच में है, then what will happen? तो 0 to 7 में ही वोंट बी पनिश्ड, वी अंडरस्टैंड दिस. बट अगर चाइल्ड का एज 7 से 12 के बीच में है, देन इट इज टू बी सीन, यहाँ पे वो उसको कन्विक्ट कर भी सकते हैं और कन्विक्ट नहीं भी कर सकते हैं. 0 to 7 में क्लियर है, ही कैन नॉट बी कन्विक्टेड. 12 साल से ऊपर में भी श्योर है, ही विल बी कन्विक्टेड, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. द ओनली थिंग इज 7 से 12 में वी हैव टू सी, अगर उसको कन्विक्ट करना है तो first it is to be established that he had the understanding that what he is doing. He had the proper maturity to understand that what he is doing and what will be the result of that particular action. अगर ये establish हो जाता है कि उसकी sufficient maturity थी, उसको sufficient understanding था कि वो क्या कर रहा है, then उस केस में आप उसको liable कर सकते हैं. बट अगर ये establish नहीं होता है तो आप उसको punish नहीं कर सकते हैं, तब आप उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं, तब आप उसको लायबल नहीं कर सकते हैं क्रिमिनली. अब कैसे पता चलेगा कि किसी की सफिशिएंट मैच्योरिटी है या नहीं, सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग है या नहीं? हाउ विल यू नो दिस? तो इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस. फैक्ट्स से आपको पता चलेगा. सिंपली टेक वन एग्जांपल, लाइक इफ यू सी, अगर कोई एक बच्चा है जिसका अपने माँ से बहुत अच्छा रिलेशन है, सपोज ही हैज़ वेरी गुड रिलेशन विथ हिज मदर, एंड वो ऐसे ही खेलने में अपने माँ को चाकू मार देता है, तो ये फैक्ट से ये पता चल रहा है कि उसको पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है, ही इज़ नॉट अवेयर कि क्या इसका रिजल्ट होगा. या सपोज कोई बच्चा है, वो 7 साल का है, और वो मोबाइल खेलते हुए मोबाइल को नीचे पटक देता है. अब वो कोई उसको ना मोबाइल से दिक्कत है, वो उल्टा उस पर गेम खेल रहा था, ना ही उसको आपसे कोई इनमिटी है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है. तो इट सीम्स फ्रॉम द फैक्ट कि उसकी कोई मैच्योरिटी नहीं थी, ही डज नॉट हैव द सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग कि इस चीज़ का रिजल्ट क्या होगा. तो इस केस में यू कैन नॉट कन्विक्ट दैट पर्सन. बट अगर सपोज करो कि कोई 10 साल का बच्चा है, या 9 साल का है, या 8 साल का है, कोई 7 से 12 के बीच में, वो अपने घर से अपने अंकल का सपोज करो कि कोई डायमंड रिंग चोरी करता है और जाके मार्केट में उसको सेल करता है और पैसा लेके आता है और अपने बुक के पास उसे छिपा लेता है. अब यहाँ पे फैक्ट से क्या लग रहा है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है? बट ऑब्वियस यू कैन अंडरस्टैंड, इट सीम्स कि ही हैज़ द अंडरस्टैंडिंग टू नो दैट व्हाट ही इज डूइंग. तो इस केस में उसको लायबल करेंगे.
तो 7 से 12 में उसका मैच्योरिटी देखना है, उसका अंडरस्टैंडिंग देखना है, और उसके बेसिस पे वी हैव टू डिसाइड दैट वेदर ही विल बी लायबल और नॉट। 0 to 7 नो कंफ्यूजन इज देयर, ही वोंट बी लायबल। 12 के ऊपर नो कंफ्यूजन, ही विल बी लायबल। जो भी है ग्लिच वो 7 से 12 के बीच में है, एंड इट इज टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस बाय ascertaining, after ascertaining that whether he has the requisite intention or not. If he has, then he will be punished. If he doesn't have that intention which is required, it seems that he does not have the sufficient maturity, then he won't be punished. So this is the thing which is to be seen. So this is the first, this is not the first general exception. It starts from 76, it's 82 which we have done right now, but this is first we have discussed. So this is the minority as exception, minority as the defense. So I hope you understand this. Then we will move to another next exception which is there. It is insanity. It is insanity as defense. Insanity as defense. It's given under 84 IPC. Section 84 IPC discusses insanity. Now what is insanity? जैसे वहाँ पे माइनर को आपने दिया है डिफेंस एक्सेप्शन आईपीसी में, वैसे ही इंसेन पर्सन को भी एक्सेप्शन दिया गया है। इंसेन का मतलब क्या होता है? हु इज इंसेन? इंसेन उस पर्सन को बोलोगे जो अनसाउंड माइंड का है, जो मेंटली इंसेन है, वो नहीं समझ सकता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द एक्ट, what he is doing he cannot understand, or he cannot understand that what will be the result of the act. He cannot understand that whether it is good or whether it is bad. He is insane. He cannot understand the nature of the act. He cannot understand what will be the result of that act. He cannot understand that what he is doing is either good or bad. He cannot understand. Because of this, insane person is also exempted. उसको भी एक्सेप्शन है। इंसेन पर्सन को भी आप पनिश नहीं करते हैं। आई थिंक यू हैव सीन इट इन मूवीज, लाइक मूवीज में, सीरियल्स में यू हैव सीन इट कि अगर कोई इंसेन है तो वो पनिश नहीं होगा। इट कम्स फ्रॉम आईपीसी। आईपीसी टेल्स दिस दैट अ पर्सन हु इज इंसेन कैन नॉट बी पनिश्ड इन द सेम वे एज माइनर कैन नॉट बी पनिश्ड हु इज अप टू 7 years ऑफ एज। तो इंसेन पर्सन को भी पनिश नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे दो चीजें देखनी होती है। मेडिकल इंसैनिटी इज रिक्वायर्ड, वो मेडिकली इंसेन है, ये रिक्वायर्ड है, बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश दैट ही इज लीगली इंसेन। लीगल इंसैनिटी इज ऑल्सो टू बी सीन। लीगल इंसैनिटी इज ऑल्सो टू बी सीन। यू कैन सी इट। लीगल इंसैनिटी भी देखना होगा। नाउ हाउ डू यू डिटरमाइन द लीगल इंसैनिटी? Medical insanity doctor can determine. There are ways to determine that. There are procedures to determine that. There are various things in which a medical insanity can be determined. But how will you determine legal insanity? So there are certain tests to see that whether a person is legally insane or not. No, legally insane is a term which is given. It doesn't mean, it's not that a person like legally insane, you cannot imagine it in that sense. But this simply means कि ये टेस्ट है। अगर कोई इंसान सिर्फ डॉक्टर बोल रहा है कि ये मेडिकली इंसेन है, तो सिर्फ उतने से ही उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा लॉ में। सिंपल मतलब है, कोई इंसान कोई क्राइम कर दिया, डॉक्टर ने बोल दिया कि ही इज इंसेन, तो इतने से ही जज नहीं मान जाएंगे कि हाँ हाँ इज इंसेन, लेट हिम गो एंड डू पार्टी। नो, it is to be ascertained that whether he is legally insane or not. For this there are certain things have to be seen. One thing which is to be seen कि जब वो क्राइम कर रहा था तो उसका मेंटल कंडीशन क्या था, उस टाइम उसका मेंटल कंडीशन क्या था, इट इज टू बी सीन। ये भी देखा जाएगा कि क्राइम करने के पहले उसका मेंटल कंडीशन क्या था, इट इज टू बी सीन। ये भी देखा जाएगा कि क्राइम करने के जस्ट बाद उसका मेंटल कंडीशन क्या था, इट विल बी सीन। बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस फैक्ट्स कि वो उसका व्हाट वाज हिज मेंटल कंडीशन बिफोर डूइंग द क्राइम, व्हाट वाज हिज मेंटल इंटेंशन व्हेन ही वाज डूइंग द क्राइम, व्हाट वाज हिज मेंटल इंटेंशन आफ्टर डूइंग द क्राइम, व्हाट वाज हिज मेंटल स्टेट। Basis on the mental state during the crime, mental state before the crime, mental state after the crime, on the basis of these ascertainable facts, court will decide that whether he is legally insane or not. If it will be found by the court that he is legally insane, then he will be given the protection under section 84, he will be given the benefit. But if it is not proved, if it is proved that he is fit, he is legally sane, he is not legally insane, then he will be punished. So medical insanity के अलावा legal insanity is also required. So this is something which you have to understand, number one. Number two, one very important concept which we have done in last class, we saw that prosecution has to, in first lecture we saw that prosecution has to establish that the accused has done the crime. Like it is the onus of the prosecution to prove that the person has done the
crime. Now the question is कि prosecution prove करता है कि किसी ने crime किया है, and that also beyond reasonable doubt. So it's not that कि आपको बस normal तरीके से prove कर दिया या beyond reasonable doubt नहीं किया तो चल जाएगा, नहीं. It must be proved by that person who is alleging any fact, who is making the allegation. So prosecution has to prove that you have done the crime, number one. And number two, prosecution has to prove that you have done the crime, and that too beyond reasonable doubt. But in general exception, if you are saying that you are insane, then you have to prove that you are insane. Like you cannot just say, oh, I am insane, and law will believe that yeah, right, you are insane, and go just do. No, not like that. You have to prove कि आप insane हैं. You have to prove आप माइनर हैं. और भी जो डिफेंसेज आएंगे जैसे इंटॉक्सिकेशन अगला है, इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन, तो आई विल टेल वहां पे भी यू हैव टू प्रूव कि आप इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेटेड थे. नेसेसिटी भी डिफेंस है, तो यू हैव टू प्रूव कि नेसेसिटी थी. तो जनरल एक्सेप्शन के अंदर आपको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट एजर्ट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आप इंसेन हैं, तो आपको ही प्रूव करना पड़ेगा कि आप इंसेन हैं. आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आई एम इंसेन एंड नाउ लेट प्रोसिक्यूशन प्रूव दैट आई एम नॉट इंसेन. नो, प्रोसिक्यूशन आपका प्रूव कर रहा है. सपोज आपके ऊपर इफ यू आर अक्यूज्ड फॉर ऑफेंस अंडर 378 आईपीसी थेफ्ट के लिए, तो प्रोसिक्यूशन इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश दैट यू हैव कमिटेड थेफ्ट. तुमको ये नहीं प्रूव करना है कि तुमने क्राइम नहीं किया है, ये प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना है कि तुमने क्राइम किया है. बट अगर तुम ये बोलोगे कि आई एम इंसेन, देन यू हैव टू प्रूव कि तुम इंसेन हो. तुम ये नहीं बोल सकते हो कि सी आई हैव मेड वन स्टेटमेंट कि आई एम इंसेन, नाउ लेट प्रोसिक्यूशन प्रूव दैट आई एम नॉट इंसेन. नो, नॉट लाइक दैट. यू हैव टू प्रूव दैट यू आर इंसेन. You have to prove that you are minor. You have to prove that you are involuntarily intoxicated. So all these things you have to prove. So this is again one important thing which you have to see. Now coming back to our point of legal insanity. Legal insanity के लिए I said mental state before the commission of the crime, mental state during that act, and mental state after that act is to be seen, is to be ascertained, and on the basis of that it will be established that whether you should be given that particular benefit or not. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यू विल अंडरस्टैंड. सपोज करो कोई एक इंसान है, वो कोई कहीं जाता है, किसी इंसान को शूट करता है और वहां से वो निकल जाता है और वो नॉर्मल तरीके से भीड़ में वो जा रहा है. जैसे ही वो देखता है कि पुलिस आ रही है, वो वहां से छिपने लगता है, दूसरे रास्ते में भागने लगता है, दौड़ने लगता है. क्या लगता है फैक्ट्स ऑफ द केस से वो मेंटली स्टेबल है या नहीं है? इफ यू विल थिंक ऑब्वियसली ही इज, बिकॉज अगर वो मेंटली स्टेबल नहीं है तो हाउ डज ही नो कि पुलिस के आने पे भागना चाहिए? हाउ डज ही नो? लाइक अगर इंसेन है, कोई अनसाउंड है माइंड, तो ही शुड नॉट नो दिस ना. ही शुड नॉट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज नॉट हैपनिंग. बट इफ ही इज डूइंग दिस, देन सिंपली मीन्स कि उसको मालूम है, वो अपने नेचर ऑफ एक्ट को समझ रहा है कि पुलिस से पकड़ सकती है, सो आई शुड रन अवे. तो यहाँ पे उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर ये स्टैब्लिश होता है तो ऐसे देखा जाएगा. या फिर जैसे दूसरा केस लेते हैं, सपोज करो एक इंसान है, उसका रिलेशन बहुत अच्छा है अपने वाइफ से, सपोज लाइक दिस, उसका रिलेशन बहुत अच्छा है अपने बच्चों से, चिल्ड्रन, ही इज वेरी हैविंग गुड रिलेशन विथ हिज सन, हिज डॉटर, हिज वाइफ. They all are doing party, like they went to the restaurant, they came after eating, having nice dinner and all, and then out of nowhere he killed all of them. And then वो वहां से जा भी नहीं रहा है, वो घर पे ही बैठा हुआ है, he is not going anywhere. सुबह लोग आते हैं, उसको कुछ नहीं पता है, the blood is there but he is just sitting like that. फैक्ट से क्या लग रहा है, whether he is in his mind or he is not understanding that what he has done or why he has done what he is doing. तो अगर कोई इंसान क्राइम करता है तो वो भागता है, वहाँ बैठा नहीं रहता है कि वो लोग आएंगे पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं होता है. या कोई क्राइम करता है तो वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना चाहता है. कोई भी इंसान क्राइम करता है तो वो अचानक से ऐसे नहीं कर देता है, कुछ रीज़न होता है. कोई रीज़न नहीं है, भाग नहीं रहा है, बिल्कुल आप देख के लग रहा है कि पूरा उसका ड्रेस ब्लड में सोक है, बट वो इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग. तो इस एग्जाम्पल से क्या समझ में आ रहा है, इस फैक्ट से क्या समझ में आ रहा है, इस एग्जाम्पल से व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड कि ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द एक्ट, ही इज़ अनअवेयर दैट व्हाट ही हैज़ डन, व्हाट ही इज़ डूइंग. So in this case, he will be given the protection, he will be given the benefit. So that's how we have to determine. So first we saw minority as defense, then we saw this particular defense under insanity as defense. Okay, now we will see intoxication, involuntary intoxication. That's another defense which we have to see. So it's intoxication.
and it's involuntary. It's involuntary intoxication. This is third defense. First we saw minority, then we saw insanity, and third, which we are now going to do, is involuntary intoxication. It simply means that a person was intoxicated. एक पर्सन जो था वो इंटॉक्सिकेटेड था, पहला. दूसरा, वो इंटॉक्सिकेटेड था नॉट बाय हिज ओन विल बट बाय सब, उसने खुद से अपने आप को इंटॉक्सिकेट नहीं किया है, वॉलेंटरली खुद को इंटॉक्सिकेट नहीं किया है, किसी और ने उसको इंटॉक्सिकेट किया है. तो क्या क्या एलिमेंट्स हो गए? पहला कि ही वाज इंटॉक्सिकेटेड. दूसरा, ही वाज नॉट इंटॉक्सिकेटेड वॉलेंटरली. यू नो द मीनिंग ऑफ वॉलेंटरी. वॉलेंटरी मतलब वॉलेंटरली, खुद से. सो पहला एलिमेंट, ही इज इंटॉक्सिकेटेड. दूसरा एलिमेंट, ही इज नॉट इंटॉक्सिकेटेड वॉलेंटरली. एंड तीसरा, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एक्ट विच ही इज डूइंग. अगर ये तीनों एलिमेंट्स होंगे तो उसको बेनिफिट इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन के अंदर लॉ में मिलेगा. इसका सिंपली मतलब होता है कि अगर कोई इंसान कहीं गया और उसको मालूम नहीं है कि वो इंटॉक्सिकेट किसी ने उसको कर दिया है, या तो उसके बिना कंसेंट के उसको चीट करके, उसको बिना बताए, उसको बिना इन्फॉर्म किए किसी ने इंटॉक्सिकेट कर दिया, तो व्हाट इट मीन्स, उसको मालूम ही नहीं है कि वो इंटॉक्सिकेटेड है. ही इज नॉट अवेयर दैट ही इज इंटॉक्सिकेटेड. ही इज नॉट नोइंग दैट ही इज इंटॉक्सिकेटेड. उसको मालूम ही नहीं है. सपोज करो यू आर ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक्स और उसमें कोई इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस मिला के तुमको कोई दे दे, एंड यू डोंट नो दिस, यू थॉट दैट यू आर ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक्स. हाउ विल यू नो? यू कैन नॉट नो इन दैट केस. तो तुम्हारे बिना कंसेंट के तुमको इंटॉक्सिकेट किया गया है. या दूसरा, अगर सपोज करो कोई इंसान फोर्स करके इंटॉक्सिकेट करे. सपोज कोई इंसान तुम्हारे ऊपर गन रख के बोले कि ड्रिंक दिस थिंग और आई विल किल यू, देन व्हाट यू विल डू? यू हैव टू डू दैट टू प्रोटेक्ट योर ओन लाइफ. तो वहां पे तुमको मालूम तो है दैट यू आर गोइंग टू बी इंटॉक्सिकेटेड, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज यू आर अंडर फोर्स. तुम्हारे ऊपर फोर्स है, यू हैव टू डू बिकॉज अदरवाइज देयर विल बी थ्रेट ऑन योर लाइफ. तो यहाँ पे भी बोलेंगे कि तुम इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेटेड हो. तो या तो तुम्हारे बिना कंसेंट के तुमको दिया गया है तो भी इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेटेड हो, या फिर तुम्हारा कंसेंट फोर्सफुली लिया गया है, धमकी दे के लिया गया है, तो भी वी कैन से कि तुम इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेटेड हो. अब ऐसे केस में अगर तुम एक बार इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेटेड हो गए और तुम कंडीशन में नहीं हो टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज एक बार जब आप इंटॉक्सिकेटेड होते हैं तो यू आर नॉट इन योर मेंटल फैकल्टी इज नॉट लाइक नॉर्मल पर्सन. यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर डूइंग. You will be not in your control basically. That's what happens when you are intoxicated. So because you are intoxicated without having your knowledge, or if your knowledge was there, then that knowledge was obtained by the force, and then after that you are not able to understand that what you are doing, and then you did something wrong, then law will not punish you. Why law will not punish you? Because again, जैसे माइनर का इंटेंशन नहीं होता है, जैसे इनसेन पर्सन का इंटेंशन नहीं होता है, वैसे ही इनवॉलेंटरली जो इंटॉक्सिकेटेड हुआ है उसका भी कोई इंटेंशन नहीं है, उसका भी कोई मेंस रिया नहीं है. तो हाउ लॉ विल पनिश दैट पर्सन? बिकॉज इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉ. यू वांटेड टू डू समथिंग. अगर ऐसा किसी को पनिश कर देंगे तो इट विल बी इनजस्टिस. उसकी गलती नहीं है, वो उसको मालूम नहीं था कि ही इज इंटॉक्सिकेटेड. एंड वंस अ पर्सन इज इंटॉक्सिकेटेड देन इट इज नॉट इन हिज हैंड टू कंट्रोल हिमसेल्फ. यू आर इंटॉक्सिकेटेड अगर वो हुआ जिसकी वजह से वो आउट ऑफ हिज माइंड है, वो नहीं समझ रहा है कि वो क्या कर रहा है, तो हाउ विल यू पनिश दैट पर्सन? तो लॉ यहाँ पे पनिश नहीं करती है बिकॉज इंटेंशन इज लैकिंग, बिकॉज मेंस रिया इज लैकिंग. तो involuntary intoxication is the valid defense. It can be taken if you are involuntarily intoxicated, you cannot understand the nature of the act, then you can take this defense. Law will allow you to take this defense. So this is again, यहाँ पे भी burden of proof किसका है? उसी का है जो ये बोल रहा है कि I am involuntarily intoxicated, I was involuntarily intoxicated. जो ये बोलेगा उसी को ये proof करना पड़ेगा. तो ये नहीं है कि वो बोल दे कि आई एम इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेटेड एंड नाउ लेट देम प्रूव दैट आई वाज नॉट इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेटेड. नो, you are making this claim, you have to prove this claim. This is you have to do this. Now how to prove? I said it in very first class that substantive law is not concerned with these things. कैसे करेंगे, process क्या होगा, all these things will be discussed in evidence law. All these things are there in CRPC, that what will be process and how evidence is to be given, how witnesses will come. All these things are there in Indian Evidence Act.
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आईपीसी बस बताता है राइट एंड ड्यूटीज, लॉ क्या है, ऑफेंस क्या है, पनिशमेंट क्या है, दैट्स इट। तो इट जस्ट टेल्स यू if you are involuntarily intoxicated, you will get the benefit of that, you will get the protection. How to prove? You have to refer to Indian Evidence Act, there you will know that how to prove. So those things are there, so I hope you understand this. Now another concept, involuntary intoxication के अंदर, suppose you are involuntarily intoxicated, accepted, you were not aware कि आपको intoxicate किया गया है, accepted, या अगर आपको पता था तो फोर्स से आपका कंसेंट लिया गया तो भी आप इनवॉलेंटरली ही इंटॉक्सिकेट हुए हैं, एक्सेप्टेड। बट इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेट होने के बाद भी अगर आप अपने माइंड के कैपेसिटी आपकी खराब नहीं हुई है, अगर आपका मेंटल फैकल्टी सही से काम कर रहा है, अगर आप नेचर ऑफ एक्ट समझ सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और उसके बाद आप करते हैं वो क्राइम और आप अपने होश में हैं, देन यू विल बी पनिश्ड और नॉट, दिस इज द क्वेश्चन. So what should it be? Should you be punished or you should not be punished? So in that case, you will be punished. You will be punished in that case. Why will you be punished? ये सही है कि आप involuntarily intoxicated थे, but involuntarily intoxication के बाद भी अगर आपका mental faculty सही से काम कर रहा था, आपका mind सही से काम कर रहा था, आप nature of act समझ सकते थे, तो आप क्राइम क्यों किए? इसका मतलब आपका इंटेंशन था, इसका मतलब आपका मेंस रिया था. तो सिर्फ इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेटेड थे ये बोल देने से नहीं होगा. इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन के बाद ये भी जरूरी है कि आप आउट ऑफ योर माइंड, आउट ऑफ योर मेंटल फैकल्टी हैव स्टॉप्ड वर्किंग. यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एट व्हाट इज द नेचर ऑफ द एक्ट. You cannot understand at what you are doing. You are totally unable to understand. If you can understand at what you are doing, then it doesn't mean कि आप involuntarily intoxicated हैं, but still अगर आप अपने माइंड में हैं, आपका माइंड सही से काम कर रहा है, तो आप कुछ भी कर दें और बोले हाँ I was involuntarily intoxicated. No, law won't accept. Law won't accept this. Because then it's simple that you had menstruation. It's simple that you had intention. It's simple that you wanted to do. So then you will be punished. तो फिर ये डिफेंस नहीं मिलेगा. So this thing is again important thing to grasp. तो सिर्फ involuntarily intoxication is not sufficient. Something more is required, and that something more is that you were not in your mind to understand what you are doing. You were out of control basically. Then you will get this defense. I hope you understand this. Now, involuntary intoxication के अंदर you understand that what will happen. Voluntary intoxication में डिफेंस मिलेगा या नहीं? This is the question. Involuntary तो we understand कि इनवॉलेंट्री में डिफेंस मिलता है, वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन में डिफेंस मिलेगा या नहीं? तो इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन डिफेंस नहीं मिलेगा. मतलब कि इफ आप अपने मन से आप खुद को इंटॉक्सिकेट किए हैं, अगर आप अपने कंसेंट से खुद को इंटॉक्सिकेट किए हैं, या आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं था, आपके ऊपर कोई थ्रेट नहीं था, आप खुद से गए पार्टी में और खुद को इंटॉक्सिकेट कर लिए, तो फिर ये डिफेंस नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अब वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेट करने के बाद दो चीज हो सकता है. पहला ये हो सकता है कि आप खुद को वॉलेंट्रली इंटॉक्सिकेट किए, आप अपने कंसेंट से, फ्री कंसेंट था, आप अपने मन से खुद को इंटॉक्सिकेट किए, और उसके बाद भी आप ऐसे कंडीशन में हैं कि आप समझ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं. तो इस केस में तो आपको ऑब्वियसली डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप इनवॉलेंट्रली इंटॉक्सिकेट होते हैं और इनवॉलेंट्रली इंटॉक्सिकेट होने के बावजूद अगर आप अपने माइंड में होते हैं, कंट्रोल में होते हैं, और आप नेचर समझते हैं अपने एक्शन का और वो काम कर देते हैं ऑफेंस, तो भी आपको डिफेंस नहीं मिलता है. तो जब आप खुद से वॉलेंट्रली इंटॉक्सिकेट किए हैं खुद को और आपका माइंड सही से काम कर रहा है और तब आप ऑफेंस कर दिए, तब तो कोई सवाल ही नहीं है कि आपको कोई उसमें मिल जाए any defense. You will not get any protection. You will not get any benefit. So law won't accept it. It's very simple. But दूसरा एग्जांपल लेते हैं. दूसरा केस हो सकता है कि आप खुद को वॉलेंट्रली इंटॉक्सिकेट किए, बट इतना ज़्यादा आप इंटॉक्सिकेटेड हैं कि आप आउट ऑफ योर माइंड हैं और उसमें आप क्राइम कर दिए. तब आपको डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा. यहाँ पे भी आप अगर खुद को वॉलेंट्रली इंटॉक्सिकेट किए थे और वॉलेंट्रली इंटॉक्सिकेट होके भी यू कैन गो आउट ऑफ योर माइंड, यू कैन गो आउट ऑफ कंट्रोल. इट्स पॉसिबल, ऑब्वियसली इट्स पॉसिबल. बहुत ज़्यादा आपने ड्रिंक किया है, यू आर अनअवेयर, यू आर इंटॉक्सिकेटेड टोटली, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज नेचर ऑफ योर एक्ट, यू आर टोटली आउट ऑफ कंट्रोल and you are voluntarily intoxicated. You are intoxicated by own consent, your own consent.
You have done it by yourself. Still, law will not give you any protection. Why law will not give you any protection is simple. Because voluntarily आपने अगर कुछ किया है तो आप उसके खुद रिस्पॉन्सिबल हैं. अब आप बाद में ये नहीं बोल सकते हैं कि I intoxicated myself voluntarily and then it happened. Who told you to intoxicate you voluntarily? Who told you to do this? And if you did this and you went out of your control and then you committed the crime, then you cannot go to law and say that, oh, I intoxicated by my consent, and then see I committed crime and then give me defense also. So it's ridiculous. It will not be done. So law will not give you any benefit in that case. So involuntary intoxication में ही benefit मिलता है आपको, और वो भी involuntary intoxication तब जब आप इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन के बाद आउट ऑफ कंट्रोल थे, आप नेचर ऑफ एक्ट नहीं समझ रहे थे तब. अगर आप तब भी कंट्रोल में थे तो नहीं मिलेगा, और वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन में तो किसी केस में नहीं मिलेगा, आप कंट्रोल में थे या नहीं थे. लॉ वोंट टेक केयर अबाउट दैट. इफ यू हैव डन देन यू हैव डन. In that case, you will be given the punishment of the same. So that is the important concept to understand. So what we have done in now till this point is very simple. We have saw that what is this concept of general exception. We have saw three things: minority, insanity, and intoxication. So I hope you understand this. Then we will move